नमस्ते। सत्ता में नरेंद्र मोदी के 20 साल कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम मोदी मॉडल को योजनाएं लागू करने, पारदर्शिता और जनहित के पैमाने पर आंकेंगे। मोदी का नारा है सबका विकास। इस नारे की रोशनी में सरकारी योजनाओं को परखेंगे। मोदी का वादा है सबका हित, तो हम जानेंगे कि यह वादा धरातल पर उतरा या नहीं। अब योजनाएं लॉन्च कर दी गई, लेकिन क्या लोगों को इनका फायदा मिल रहा है? क्या मोदी के गवर्नेंस मॉडल से निकली योजनाएं जनहित के पैमाने पर खरी हैं? आज हम मोदी मॉडल को जनतावाद, सामाजिक सुरक्षा, किसान हित और कल्याण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर आंकेंगे। सबसे पहले जनतावाद। जनगण मन की जिम्मेदारी उठाने वाली संस्था होने के नाते क्या सरकार जन के हक में ठोस कदम उठा रही है? 2020 में देश के भीतर सबसे महत्वाकांक्षी योजना अफसरशाही में सुधारों की पहल हुई। इस योजना का मकसद था नागरिक सुविधाओं को ज्यादा रचनात्मक, सृजनात्मक, प्रगतिशील, पेशेवर और पारदर्शी बनाना। लेकिन मुश्किलों के बीच मिशन कर्मयोगी को आगे बढ़ाना एक कर्मयोगी नेता ही कर सकता था। साल 2005 में नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारियों की क्लास शुरू की। इस तरह अफसरशाही में सुधार करने के लिए कर्मयोगी अभियान की नींव रखी गई। सुधार सिर्फ अफसरशाही में ही नहीं, बल्कि मोदी का मकसद हमेशा से साझा सहयोग के जरिए सरकार को सबकी सरकार का रूप देना रहा है। महामारी के महासंकट में भी प्रधानमंत्री ने कोरोना नियमों पर जनता को जागरूक करने के लिए जनता कर्फ्यू और 9 बजे 9 मिनट जैसे नए अभियान चलाए, क्योंकि सबका विकास की आधारशिला जनतावाद ही है। Why is it that a man who works 14 hours a day and is very effective, he gets promoted at the same day on this and earns the same as his neighbor who's in the same batch, who works only 2 hours a day and does nothing? And finally, Parliament. Why are 1/3 to 1/4 members of Parliament and state assemblies with the criminal records? Now that goes to the heart of governance. मोदी सरकार का मिशन कर्मयोगी अफसरशाही में सुधार की सबसे बड़ी पहल है। इसके तहत 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को प्रोफेशनल बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इस पर 5 साल में 511 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इस योजना का खर्च वहन करने के लिए $5 करोड़ की बहुपक्षीय सहायता भी मिल रही है। You know, if I remember correctly, it was, I think, I joined on the 1st of March, 2016 as secretary in the Ministry of Drinking Water and Sanitation. And I think it was in April, within a month, a couple of months, that I had this opportunity to meet the Honorable Prime Minister. And it was an inspiring meeting. You know, he sort of set out his vision for development as a whole. And of course, he set this very, very audacious, this big goal. So he thinks very big. He sets out the vision, and then, but he knows the nitty-gritty probably better than anyone else. His very memorable speech from the Red Fort, 15th August 2014. I was with my wife in Hanoi in Vietnam, and I was thinking, unbelievable. The first time a prime minister, and that too from the Red Fort, is putting this basic issue which has not been solved for centuries at the top of his agenda. Dignity of women and girls. Look at the focus on performance, on delivery of programs, right? I think this was intensified during this prime minister's term, where bureaucrats were both given the flexibility, but also held accountable for delivery. And I think that's brought about quite a change in the way government functions and the way the civil services function at all levels. So I have to say it's been a definite improvement. He's an amazing leader. I mean, the large numbers of changes that our economy and our society more widely has been done. Changes in triple talaq, to the changes done to the constitutional
status of Jammu and Kashmir. Big, bold moves, moves that very often were thought to be impossible, but have been done. And that requires a certain belief and self-confidence and conviction in purpose, which I think is what comes through. I've had many personal dealings with him, made many presentations to him, and he asks questions, and when necessary, if you say something that may go against what he may be initially believing, he is a person who takes feedback, and I've seen that numerously from myself and from the presentations and ideas of others. It is certainly very much a feedback based system of thinking through issues. Yes, the ultimate objectives may be clear, but how we get there is due to a continuous system of feedback. अंत्योदय मतलब समाज के अंतिम आदमी को सशक्त बनाना। विकास होता है तो समाज में धरातल पर उसका असर दिखने लगता है और कतार में खड़े आखिरी आदमी तक लाभ पहुंचता है। चलिए देखते हैं कि क्या मोदी मॉडल से निकली विकास की योजनाएं समाज के सबसे कमजोर और अंतिम छोर पर खड़े तबके को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। सबका साथ, सबका विकास। समाज के अंतिम आदमी तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाना प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है। આ મિશન મંગલમ એક એવી યોજના છે ભાઈ, એનાથી આપણે અંદાજ આવશે કેવું પરિવર્તન આવશે। 2010 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते उनकी प्रतिबद्धता से ही मिशन मंगलम की शुरुआत हुई। इस मिशन के तहत गरीब कल्याण की खातिर एनजीओज और उद्योगपतियों के साझा कार्यक्रम किए गए। इसी मिशन के तहत आदिवासियों तक विकास पहुंचाने के लिए वन बंधु कल्याण योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार अटल पेंशन योजना के जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक आर्थिक सुरक्षा पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। लॉकडाउन के दौरान गरीब कल्याण योजना की वजह से ही किसी को भूखा नहीं सोना पड़ा। वन नेशन वन कार्ड योजना से प्रवासी मजदूरों और गरीबों को देश की किसी भी सरकारी गल्ले की दुकान से अन्न खरीदने का अधिकार दिया। आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना ने कम आमदनी वाले देश की आधी आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस दिया। गरीब के सिर पर पक्की छत देने के लिए मोदी सरकार ने गांव में 1 करोड़ मकान बनाने का ऐलान किया। सबको सामाजिक सुरक्षा दिए बिना सबकी प्रगति नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए। अटल पेंशन योजना का लाभ 3.3 करोड़ लोगों को मिल रहा है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों के नामांकन हो चुके हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत 81 करोड़ लाभार्थी देश भर में किसी भी सरकारी दुकान से अनाज खरीद सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 16.5 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। In the case of PM Modi, his 6 years to date at the center has been marked with a very particular emphasis on the welfare of the bottom 2/3 of the population. Swachh Bharat is the quintessential welfare program properly done. And, we had worried in India for a long, long time that the malnutrition, etc. of Indians under the age of 5 of kids was worse than some of the countries in sub-Saharan Africa. Some of the very poor countries, we were performing worse. What we have done is, in the face of this biggest crisis that the world and India has faced, we instituted far-ranging economic reforms. These reforms help the poor the most. 65-70% of the population, that the welfare expenditures, the orientation in these policies was a gain towards them. The bottom 15% of the population saw an increase in their income, in their expenditures by 15 to 20%. Food allocation was doubled. मैं 10th के एग्जाम्स जब शुरू हुए थे
तो पहली बार मैं अनकॉन्शियस हुई थी। फिर मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, इसके बाद इको टेस्ट हुआ, फिर ASD की रिपोर्ट आई। फिर हम गए वहाँ खैबर हॉस्पिटल डॉक्टर खालिद मोहिद्दीन के पास, वहीं पे मेरी सर्जरी हुई थी। हमारे पास पैसे नहीं थे उतने सर्जरी के लिए, लेकिन आयुष्मान भारत इसी गोल्डन कार्ड की वजह से मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब मैं अनकॉन्शियस भी नहीं होती हूँ, घर में भी पढ़ भी पाती हूँ अच्छे से। बीमारी हमारे 5 साल से 6 साल से पथरी रही, और पथरी रही बहुत दवाई करान यहाँ वहाँ, लेकिन कोनो ठीक नहीं है। तब डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर कहें कि ऑपरेशन हुई। तो हम कहें हम इतना गरीब हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम पैसा लगा के ऑपरेशन ना करवा पाए। फिर कहें कि जाओ तो अपन कार्ड, आयुष्मान कार्ड निकाल लाओ। तो हम गए सरकारी अस्पताल, आयुष्मान कार्ड लेके आए, और डॉक्टर तब लेके गए हमारा ऑपरेशन करवाइन जाए के। कुछ नहीं लगा हमारे इलाज में, भारत सरकार से, मोदी की तरफ से हुआ था। देश का बुद्धिजीवी नीति निर्माता तबका कृषि सुधारों की वकालत करता रहा है। 2 दशक से ज्यादा समय से बाजे गाजे के साथ कृषि सुधारों की मांग उठ रही है। कृषि सुधार के 3 कानून किसान हित में उठाए गए शायद सबसे बड़े और सबसे साहसी कदम है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश में 80% छोटे किसान हैं। मोदी मॉडल से इन्हीं छोटे किसानों को मजबूत बनाने का विजन झलकता है। देश का किसान जन जन का पोषक है। मुख्यमंत्री रहते मोदी ने गुजरात के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए। તમે આખા ગુજરાતની 5 વખત પરિક્રમા કરો ને, અને જેટલા કિલોમીટર થાય એના કરતા વધારે કિલોમીટરના કેબલ આ 10 જ વર્ષમાં આખા ગુજરાતમાં પાથર્યા છે, અને પાથરીને આપણે સેવા કરી। देहातों को सस्ता बिजली पानी मिला तो गुजरात नकद फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी अपने इस संकल्प से नहीं डिगे। किसान सम्मान निधि से किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कृषि बीमे में क्रांतिकारी बदलाव किए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से प्रधानमंत्री का सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का विजन धरातल पर आकार ले रहा है। कृषि सुधारों के फैले भ्रम को दूर करने के लिए सरकार बार बार कह रही है कि तीनों कानून किसानों की आय दुगनी करेंगे, साथ ही किसान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी होगा। बीते 20 बरस से मोदी का दृढ़ विश्वास यही है कि देश तभी चैन से सो सकता है जब उसका किसान समृद्ध हो। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं चलाई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 12 करोड़ लाभार्थियों को 1.57 लाख करोड़ मिल चुके हैं अब तक। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 2020-21 में 9.38 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसानों की लागत 1.5 गुना ज्यादा तय किया गया है। देश के हर किसान को अनुमानित 19,722 रुपए हर किसान को सब्सिडी दी जा रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना से 20 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हैं, अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराकर ज्यादा फसल ले रहे हैं। गुजरात के नरेंद्र मोदी जी अब तो बड़ा प्रधान है, पर जब गुजरात में CM थे उन्होंने जो काम किया था उसके फलस्वरूप हम सब यहाँ विकास के पथ पे है। जब उन्होंने जो ज्योति ग्राम किया था 24 घंटे बिजली का, तो उसके कारण अभी बिजली की सुविधा उत्पन्न होती है। उन्होंने सड़क निर्माण का काम किया था, छोटे छोटे गांवों को शहर में कनेक्ट कर दिया था। खेतों में भी 24 घंटे बिजली मिले। पहले तो दिन रात को भी पानी के लिए जाना पड़ता, दिन खेडूतों को, फार्मर को सिर्फ दिन में ही पानी के लिए जाना पड़ता है, वो सुविधा हो गई है। सत्ता में 20 बरस होने के बाद भी मोदी की सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे। योजनाओं को लागू करने के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मोदी प्रतिबद्ध है, ताकि जनता के पैसे से बिचौलियों, भ्रष्टाचारियों की जेब ना भरे। मोदी नाम के आलोचक भी उनकी क्लीन गवर्नेंस की तारीफ करते हैं। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। मोदी के आलोचक भी मानते हैं
कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लड़ते हैं और उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। 7 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मोदी ने पहले की सरकारों की पहचान बन चुके बेकाबू भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को ध्वस्त कर दिया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 2016 में नोटबंदी उनका सबसे बड़ा और सबसे दुस्साहसी दांव था। आर्थिक सुस्ती के दौर में भी टैक्स चोरों और बैंकिंग क्षेत्र में जालसाजी करने वालों को इससे बड़ा झटका लगा। मोदी सरकार ने 2015 में काले धन पर कानून बनाया, जिसकी वजह से बैंक का पैसा मारने वालों की विदेशों में 4100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो गई। बेनामी संपत्ति कानून और आयकर कानून में संशोधन से आयकर विभाग के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहला बार भ्रष्टाचार के आरोपी बाबुओं पर किया गया। चाहे गांधीनगर से गुजरात चलाना हो या दिल्ली से देश, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और पारदर्शिता ही मोदी सरकार की पहचान है। सबका साथ सबका विकास का सपना तभी साकार होगा जब सरकार भ्रष्टाचार पर वार करेगी। सत्ता संभालने के शुरुआती दौर से ही मोदी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। 2020-21 में 581 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए। 2015 में पास किया गया काला धन कानून और उसके तहत उन लोगों के 8,216 करोड़ रुपए जब्त किए गए जिन्होंने विदेशों से होने वाली आमदनी का ब्यौरा छुपाया। जनधन आधार और मोबाइल यानी जैम, इससे जुड़ी योजनाओं के 43 करोड़ लाभार्थी ऐसे हैं जो अति पिछड़े तबके से आते हैं। 2014-15 के दौरान बाजार में 5.94 लाख नोट नकली थे, लेकिन नोटबंदी के बाद यह आंकड़ा 1 लाख से भी कम रह गया है। बेनामी संपत्ति कानून के तहत देश में 13,400 करोड़ रुपए की 2,450 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया है। There are all kinds of these odd regulations which God knows why they were introduced. I mean, in some cases, even when they were introduced decades ago, they probably made no sense. But they have festered along because nobody was willing to boldly go and break the shackles. And that is getting done. And we are now beginning to do some of the holy grails, so to speak. Whoever introduced the GST knew that there would be a phase where it would not work, where you had to fix it over time because it's a complicated system. Now, you took the risk. It didn't in fact work in the first few months, but then after several iterations, I think everybody will agree it's a vastly improved on whatever the complicated system that used to exist before. I think the most important idea behind this idea of governance is the willingness to experiment and take risks. This is the most important thing, to basically break with the past. Just because something was done in a certain way all these years does not mean that you cannot try another way, even if it comes with some pain. नरेंद्र मोदी हमेशा से परिश्रम करने वालों और कर्मठ लोगों को सराहते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन क्या वो जेंडर बायस यानी लिंग के आधार पर होने वाले पक्षपात, लैंगिक असमानता के मुद्दे पर संवेदनशील हैं? चलिए जानते हैं कि वो जेंडर जस्टिस के मुद्दे पर क्या काम कर रहे हैं। मैं निर्मला सीतारामन, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया सिंह पटेल, स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ मंत्री परिषद में 11 महिला और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। 17 साल में सबसे ज्यादा महिला मंत्री। महिला उत्थान के लिए ये मोदी की निजी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वर्षों पहले गुजरात का सीएम रहते बच्चियों के विकास पर फोकस करते हुए कन्या केलावानी और शाला प्रवेशोत्सव जैसी योजनाएं चलाई। बच्चियों के स्कूलों में दाखिले पर मोदी ने बहुत जोर दिया और बच्चियों को मुफ्त साइकिल भी दी। वक्त बीता तो गुजरात की योजनाएं देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की आधारशिला बनी। इसी दूरदर्शिता के साथ मोदी सरकार ने नारियों के लिए सहायता सुनिश्चित की। बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना और गरीब गृहिणियों के लिए उज्ज्वला योजना आई। महिलाओं की सुरक्षा मोदी की प्राथमिकता है।
इसलिए वो 3 तलाक खत्म करने का कानून लाए। हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। सबका विकास, नारी शक्ति। मोदी ने नारी शक्ति के सम्मान का भी ध्यान रखा। मंत्रिमंडल में 11 महिला मंत्रियों की भागीदारी है, जो बीते 17 साल में सबसे ज्यादा संख्या है। जनधन योजना के तहत महामारी के दौरान 30,000 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के खातों में जमा किए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जागरूकता बढ़ी तो स्कूलों में बच्चियों के दाखिले का प्रतिशत 77.45% से बढ़कर 81.32% पहुंच गया। निर्भया निधि के तहत महिला सुरक्षा के लिए 9,288 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को रोजगार देने वाली सखी योजना के तहत देश भर में अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर खुल चुके हैं। अति पिछड़े जिलों में 115 महिला शक्ति केंद्र खोले गए हैं। 2 decades of his leadership and administration has been predominantly been dedicated to the cause of women. Prime Minister spoke of gender justice when it was not an administrative norm. If you remember and look back at his governance model in Gujarat, you saw Anandiben emerge as a revenue minister. These are portfolios that were dominated by men. That was a signal to the community at large that these portfolios can as ably be led by women as by men. He gave a lot of focus to girl-child education in his stint as Gujarat Chief Minister. In fact, every year we were witness to his efforts to bring a girl child to school himself. He put nutrition at the topmost of his administrative agendas, giving a lot of prominence to issues like anemia amongst the tribal population, to sickle cell and other such medical challenges. This is a Prime Minister who spoke about clean cooking fuel and did the Ujjwala Yojana. Never before in our country did 80 million women know that their challenges in the kitchen every day with regards to unclean cooking fuel, which led to many health complications, could become an administrative agenda. मोदी जी ने 3 तलाक का जो कानून पास किया था, इसका बहुत बड़ा हमारे समाज में असर पड़ा है। हम लोग सारी मुस्लिम बहनों को बहुत इससे फ्रीडम मिला है। जो एक फंदा हम लोग के सर के ऊपर लटका रहता था कि ससुराल में है, हस्बैंड है, ससुराल वाले हैं, कुछ भी अगर ऊंच नीच होगा तो कुछ भी हो सकता है, तलाक दे देगा, फिर हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसको बंद करके हमारे मोदी जी ने, हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया है, उससे हम सभी बहनें, मुस्लिम बहनें बहुत खुश है। इस भाग में हमने मोदी मॉडल के वेलफेयर एंगल को परखा। अगले भाग में हम अनेबल टू एनेबल यानी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को परखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।